Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Arya Vaheed, and in this video we are going to start the question number 5 from exercise 4.1 analytical geometry. So in the previous video we have discussed the question number 3 and question number 4, and we have solved all of the question of them. Now we are going to start the question number 5. So this question number 5 is very long. So now we are going to cover this question in that video. So now in that question you have given a triangle, okay, and you have only given these points, these midpoints, and I have given these midpoint as the name of D, E, and F. The mid values of these midpoint is given to you, but the value of this point A, B, and C is not given, so you have to find out these values. So now assume the value of A as x1 or y1. Okay, so I'm removing this comma. Okay, now the value of b you will assume like x2 or y2, and the value of c you will assume is as x3 or y3. Okay, now you have to apply the formula of midpoint, and after that you will solve all of these questions. So first of all, I am applying the formula of midpoint D. So D is the midpoint between the point A and B. So I am applying the midpoint formula on D, and then I will find out the values of A and B. So first of all, you know very well the midpoint formula as it's contain x1 or it's contain x2. So your midpoint formula will become equal to x1 plus x2 divided by 2, okay, is equal to the one of this D point 1. Now other formula is y1 plus y2 divided by 2 is equal to minus 1 from here. Okay, now I am taking this 2 here, so it will become x1 plus x2 is equal to 2, because 1 multiplied by 2 is 2. It's remain uh, very simple that 2 goes to here and it will become minus 2. Now these are becoming the equations, so give this equation as the equation number 1, this is equation number 2. Now similarly find out this equation, find out this equation. Now E is the midpoint of B and C, now find out it. So it will become x2 minus x3 minus x2, okay. So how it will came x3, बल्कि पहले इसका कर लेते हैं, ठीक है. So f is the midpoint between A and C, so its value will become x1 plus x3, ठीक है. ये x1 और ये x3 is equal to 1 कर देते हैं, ठीक है. सो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये भी 2 इक्वल टू हो जाएगा, प्लस y1 प्लस y3, ठीक है. और ये -1 के इक्वल हो जाएगा. सो -1 है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 होता है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है. सो ये अब एक आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है, और ये आपके पास 4 इक्वेशन बन चुकी है. अब आप ई पे आ जाएं. ई का क्या होगा, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4 करेंगे आप, -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये -2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर आपके पास y2 प्लस y3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3 होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. 3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है. सो ये सारे हम लोग इक्वेशन जो हैं वो फाइंड आउट कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है. अच्छा, इनको इक्वेशंस का नाम दे देंगे. इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ठीक है ना. तो सबको इक्वेशंस आपने दे जाना है. सो अब आप लोग क्या करेंगे कि आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो क्या होगा, आपके पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है, और दूसरी इक्वेशन x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 है. इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा, ठीक है. ये प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी प्लस में और माइनस हो जाएगा, ठीक है. सो अब आपके पास आंसर क्या आएगा. अच्छा बच्चों, यहाँ से एक गलती हुई है कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो वो 6 आपके पास आ जाता है. इसी तरह यहाँ पर भी क्या था, हमारे पास इज इक्वल टू 4 आ रहा था, है ना, -4 आ रहा था, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 4 टू द -8 आंसर आता है, ठीक है.
सो ये चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग चलते हैं। सो जब आप इन सब चीज़ों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि ये दोनों तो कट जाएंगे, आपके पास ये भी कट जाएगा, ठीक है। सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो x2 में से x3 गया, सो ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती है। सो इट्स मीन कि हम लोगों ने ये चीज़ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जब आपके पास आंसर नहीं आया है इट्स मीन इन दोनों को नहीं माइनस करना, इन दो को माइनस करना है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 1 को 5 से माइनस करते हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8 है। जब आपके पास इक्वेशन बनेगी तब हमने इसे सॉल्व करना है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये भी माइनस और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो अब आप लोग इसको सॉल्व करें। सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास x2 में से x1 गया तो x1 बच जाएगा, माइनस ये x3 यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 + 2 10 आपके पास आ जाता है। सो अब आप लोग इसको सॉल्व, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको एक और इक्वेशन, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नो 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 आपने ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर ये, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 सो ऐड कर दें आप 7 को 4 में, ठीक है। सो क्या बनेगा आपके पास, अच्छा बच्चों 4 में नहीं, गलती हो गई, आपने 3 में ऐड करना है, ठीक है। सो अब आप लोग ऐड करेंगे जब इनको तो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 10 है और दूसरी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास ऐड होगा तो ये 2x1 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और इनको जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये -2 है, 10 -2 हो जाएगा तो वो आपके पास 8 आ जाएगा। सो x1 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी x1 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, यानी ये जो a के साथ जो पहला पॉइंट है x1 इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। अब आप इसी 4 को पुट करेंगे इधर, ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन में। सो पुट x1 इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, 7 इक्वेशन में आपने ये पुट करना है। सो 4 माइनस x3 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, ये x3 उधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। सो 4 माइनस 10 इज इक्वल टू x3 और x3 आपके पास -6 आ गया है, ठीक है। x3 हमने ये वाला पॉइंट भी निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट पे चलना है। अब आपने एक और इक्वेशन में यही x3 ये 5 में पुट कर सकते हैं x3। सो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें। सो x2 प्लस था -6 इज इक्वल टू -8 है। सो x2 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं -2, ठीक है, यानी x2 भी आपके पास आ गया b वाली, यानी पहले x की सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने y की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने इन इक्वेशंस के साथ डील करना है, ठीक है। पहले हमने इन इक्वेशंस के साथ किया था, अब हम y वाली इक्वेशंस के साथ करेंगे। सो y वाली इक्वेशंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले दो इक्वेशंस को। और कौन कौन सी दो इक्वेशंस को, सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एक तो 6 वाली इक्वेशन को और एक आप लोगों ने ये फर्स्ट वाली 2 और 6 को आपस में माइनस करना है। जैसे हमने पहले इन दो को किया था, अब हम इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब तो हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। सो मैं राइट करती हूँ। सो हमारे पास सबसे पहले है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ, इज इक्वल टू -2 है और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। सो अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास सब्ट्रैक्ट क्योंकि आप लोग कर रहे हैं, सो ये प्लस माइनस ये 1 में से 2 गया, तो आपके पास y1 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे 3 में से, ये -y3 आ जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस है, सो 6 - 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है, ठीक है। सो ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब आपने दो इक्वेशंस को ऐड करना है। पहले इन दो को हमने सेपरेट किया था, अब आप इन दो को ऐड करोगे, 4 और 6 जो इक्वेशंस है इनको ऐड कर दो आपस में, तो क्या होगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू
-2 है और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 है। इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दें आप लोग, ठीक है। सो अब आपके पास क्या इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर उन्होंने 6 की जगह है ना 4 लिखा हुआ है, और आई थिंक कि 4 तो नहीं आना चाहिए, बट आपकी पता नहीं गाइड बुक में 4 लिखा हुआ है। सो यहाँ पर भी आप इसको 4 कर देंगे। सो प्लस ऐड कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर 2y1 आ जाएगा। ये दोनों आपके पास जो है ये -y3 था, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 4 + 2 आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। सो y1 इज इक्वल टू 6/2 3 आ जाएगा, यानी y1 की वैल्यू आ चुकी है। अब पुट करते जाओ, ठीक है, पुट करते जाना और सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y1, तो 3 + y2 इज इक्वल टू -2 है। सो y2 आपके पास क्या आएगा, -2 -3, तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, -5, ठीक है। सिमिलरली अब y2 आ गया, y3 की किसी वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो y2 क्या, -5 + y3 इज इक्वल टू 6 है। सो y3 क्या हो जाएगा, 6 + 5। सो y3 आपके पास आ जाता है, अच्छा ठीक है, सो 11 नहीं आता है, y3 आपके पास -1 आता है। सो -1 निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। सो इस इक्वेशन में हम इसको ऐड करते हैं। सो y2 आपके पास आएगा -5 + y3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो y3 आपके पास क्या आएगा, 4 -4 है ना, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ठीक है। सो y3 आपके पास -1 आंसर आ जाता है, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनमें हम लोगों ने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। तो अब y की वैल्यूज़ भी आपको पता है, x की वैल्यूज़ भी पता है, हमको आपने इधर पुट करनी है और a b के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप बता देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है जी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।